Hello dear students, I hope you all are doing well and I also hope that you are enjoying history lessons with me. So today we are going to begin with the chapter called The Rise of Nationalism in Europe. So in grade 9th, I have told you we have discussed about the French Revolution, we have discussed about the Russian revolutions, we have also learnt about the Nazism, right? All of these things we have seen. So, why those revolutions were happening? Because of their, governments. Because, see, there used to be no government earlier, there used to be monarchs earlier and they used to be despotic, right? उनके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई अंकुश नहीं था. सारी जो निरंकुश राजाओं की जो मनमानी चल रही थी उनको हटाने के लिए लोगों ने बहुत सारे रेवोल्यूशंस किए एंड वी हैव रेड अबाउट देम थॉरोली लास्ट ईयर. सो इस चैप्टर में आज हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं कि हाउ द नेशनलिज्म ये जो देशभक्ति की भावना है ये यूरोप के लोगों में कैसे आई. सो लेट अस क्विकली बिगिन विद दैट. And in the beginning of the chapter only, there is a picture given, a beautiful picture is there. So what does it depict? See, in 1848, Frederick Soro, a French artist, prepared a series of 4 prints visualizing his dream of a world made up of democratic and social republics, as he called them. Now, there was a French artist, he has prepared a picture as you can see. And what is he talking about? He was visualizing that now it's time people should have democracy, people should have social republic. Now, republic means, as I always told you, republic means the head of the state is always elected and not the the chosen king. जैसे monarchy में क्या होता है, king का बेटा king, फिर उसका बेटा king, right? So that is monarchy. Republic में क्या होगा, head of the state would be elected. So he has imagined such a society. Okay. Now what does this picture depict? You can see one statue here, right? She has a torch in one of her hands. She has a torch. Torch means it depicts enlightenment. Then in the other hand, she has got the Charter of Rights. We will be seeing in the next slide. What does she have? So the series shows the people of Europe and America, men and women of all ages and social classes. Now you see all, men, women, everyone is there, marching in a long train and offering homage to the Statue of Liberty as they pass by it. Now see, as they pass by it, they are looking at the statue with the regard. On the earth, in the foreground of the image, lie the shattered remains of the symbols of absolute institutions. In Soro's utopian vision, the peoples of the world are grouped as distinct nations identified through their flags and national costume. What does it mean? Now see, on the earth, यहाँ पर क्या है? Shattered remains पड़े हैं किसके? Absolute monarch के. Now, absolutist mean the one who has absolute rule, the one who is despotic, right? So, ये नीचे उसके remains पड़े हुए हैं, which means now the absolute monarchy is ended and now it's time to have a democratic government in the country. Then what does it say? In Soro's utopian vision. Now what is utopian vision? Now utopia means an ideal society, right? एक आदर्श समाज. यूटोपिया का मतलब एक आदर्श सोसाइटी. ओके, सो इसका जो विजन है वो कैसा है? यूटोपियन है. मीन्स समथिंग, अ सोसाइटी वेयर एवरीथिंग इज परफेक्ट, एवरीथिंग इज आइडियल. So the people of the world are grouped together as distinct nations. Now all of them are living together, right? Identified through their national flags and national costume. Now see, now he is giving the concept of nation state, right? So they are all different countries, right? So different countries have their different flags, different countries have their different flags here, okay, and they all have their different costumes, they all have their different languages, right? So this is the utopian society vision, okay. Leading the procession way past the Statue of Liberty are the United States and Switzerland, which by this time were already nation states. Now अभी तक अमेरिका को इंडिपेंडेंस मिल चुका था किससे? ब्रिटेन से. America also used to be a colony of Britain earlier, children, you all must know. And then Switzerland. Switzerland भी अभी तक एक अपना नेशन स्टेट बन गया था, मतलब इनकी खुद की एक इंडिपेंडेंट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी और ये एक सोवरेन नेशंस थे, राइट? सो
जो स्टैचू के सबसे पास में है, सबसे आगे है, फ्रंट में कौन खड़े हैं? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड स्विट्जरलैंड, क्योंकि अभी तक नेशन स्टेट बन चुके थे. ओके. Identifiable by the revolutionary tricolor has just reached the statue. तो ये आइडेंटिफाई कैसे करें यूनाइटेड स्टेट्स और स्विट्जरलैंड को? क्योंकि उनके फ्लैग्स उनके हाथ में और वो स्टैचू के बिल्कुल पास में पहुंच गए हैं. Now she is followed by the peoples of Germany bearing the black, red and gold flag. अब उनके पीछे कौन है? जर्मनी के लोग. कैसे पता चल रहा है कि वो जर्मनी के लोग हैं? बिकॉज उनके हाथ में उनका ब्लैक, रेड और गोल्डन कलर का फ्लैग है. राइट. Now, interestingly, you should know that at that time when this artist made the image, the German people did not yet exist as a united nation. तब तक जर्मनी क्या था? एक यूनाइटेड नेशन नहीं बना था. तब तक वहां पर क्या चल रही थी? एक मोनार्की चल रही थी. राइट. ओके. Following the German people are the people of Austria, the kingdom of the two Sicilies, Lombardy, Poland, England, आयरलैंड, हंगेरी एंड रशिया. अब इसके पीछे ये सारे कंट्रीज के लोग चल रहे हैं. राइट. अपने अपने फ्लैग्स उन्होंने हाथ में कैरी कर रखे हैं. फ्रॉम द हेवंस अबव क्राइस्ट, सेंट्स एंड एंजल्स गेज अपॉन द सीन. दे हैव बीन यूज्ड बाय द आर्टिस्ट टू सिंबलाइज fraternity among the nations of the world. Now I'll quickly take you back to the picture. Now look at the picture. Here in the sky you can see the picture is a bit short. So from the sky the angels are, the cross symbol is there. So Christianity is the सबसे ज़्यादा majority वाला religion है west में, I mean in Europe. So you all know. तो जो angels हैं, जो saints हैं, जो जितने भी इनके Christ हैं, वो इनको क्या दे रहे हैं? blessing दे रहे हैं और बोल रहे हैं कि yes, I also support you in this mission. Okay. So this was the image which was created by this Frederic Soro, which was the French artist and which displays a clear vision of a utopian society. Utopian, I told you, an ideal society where everything is perfect, right? और अब ये क्या चाहते हैं कि absolute monarchy खत्म हो और nation states जो है वो बने. Okay, all right. So what is this? What is this nation state? Now let us see. During the 19th century, nationalism emerged as a force which brought about sweeping changes in the political and mental world of Europe. अब क्या हुआ 19th century में? सारे लोग बहुत ज़्यादा अवेयर हो गए थे. फ्रेंच रिवोल्यूशन ऑलरेडी हो चुका था. राइट. वी हैव ऑलरेडी सीन फ्रेंच रिवोल्यूशन ऑलरेडी हो गया था, 18th सेंचुरी में ही हो गया था. और उसके बाद धीरे धीरे वो रिवोल्यूशन बाकी यूरोप के देशों में भी फैला. राइट. तो अब लोगों के अंदर नेशनलिज्म की भावना बहुत ज़्यादा आ गई थी. नेशनलिज्म मीन्स देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति. ओके. तो इस देशभक्ति से जो सोसाइटी थी, जो जितने भी छोटे छोटे किंगडम्स थे राजाओं के, उनके अंदर लोगों ने रिवोल्यूशन किया और उससे बहुत बड़ा चेंज आया. सबसे पहले तो पॉलिटिकल चेंज आया, क्योंकि मोनार्की को खत्म करने की बात कर रहे थे, डेमोक्रेसी की बात कर रहे थे, तो पॉलिटिकल चेंजेस आए. राइट. तो यूरोप की सोसाइटी में इससे बहुत चेंजेस आए. Now the end result of these changes was the emergence of the nation state in place of the multinational dynastic empires of the Europe. What does it mean? तो finally इसका result क्या हुआ? End result क्या हुआ कि ये जो छोटे छोटे किंगडम्स में जो यूरोप के देश बटे हुए थे, उन छोटे छोटे किंगडम्स में से राजाओं को हटा करके क्या बनाए गए? नेशन स्टेट्स बनाए गए. राइट. इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट्स बनाए गए, जहां पर क्या आई? डेमोक्रेसी आई. ओके. सो नेशन स्टेट क्या होता है? नेशन स्टेट के फीचर्स क्या होते हैं? नेशन स्टेट इज द वन, नेशन स्टेट वाज द वन इन विच द मेजॉरिटी ऑफ इट्स सिटीजंस एंड नॉट ओनली इट्स रूलर्स केम टू डेवलप अ सेंस ऑफ कॉमन आइडेंटिटी. नेशन स्टेट में क्या होता है? वो सारे लोग रहते हैं जिनकी एक कॉमन आइडेंटिटी होती है, एक कॉमन कल्चर होता है. राइट. और एक उनकी शेयर्ड हिस्ट्री होती है. राइट. दे ऑल हैव गॉन थ्रू द सेम हिस्ट्री. तो ये नेशन स्टेट के क्या होते हैं? कुछ फीचर्स होते हैं where everyone belongs to the same ethnicity, right? Same history, same culture, right? So this is the idea of nation state. Okay. So finally यूरोप के देशों से फिर मोनार्की खत्म हुई और नेशन स्टेट्स एग्जिस्टेंस में आए. सो नेशनलिज्म का सबसे पहला क्लियर एक्सप्रेशन हमने कहाँ देखा था? वी सॉ इट इन द फ्रेंच रिवोल्यूशन लास्ट ईयर इन ग्रेड 9th. वी हैव रेड इट थॉरोली. ओके. सो द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म केम विद द फ्रेंच रिवोल्यूशन इन 1789. सो इन ग्रेड 9th वी हैव रेड अबाउट की फ्रेंच रिवोल्यूशन का जो 10 years का दौर हमने देखा था, 1789 टू 1799 का हमने एक 10 सालों का फेज पढ़ा था, जिसमें लुई 16 थे,
he had been executed, his wife also had been executed, right? फिर वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल, पहले तो नेशनल असेंबली बनी, फिर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आई, फाइनली द किंग एंड द क्वीन वॉज एग्जीक्यूटेड, और फ्रांस के अंदर क्या हुआ, एक डेमोक्रेटिक सिस्टम आया। लेकिन बाद में फिर हमने देखा कि नेपोलियन आए और वहां पर फिर से क्या आ गई, डिक्टेटरशिप आ गई, राइट। लेकिन नेशनलिज्म की भावना सबसे पहले कहां पर हमने देखने को मिली, फ्रेंच रेवोल्यूशन में 1789 के अंदर, ओके। France, as you would remember, was a full-fledged territorial state in 1789 under the rule of the absolute monarch. So, Louis XVI वहाँ पर क्या थे, absolute monarch हुआ करते थे, I have told you already. Now, the French Revolution led to the transfer of sovereignty from the monarchy to a body of French citizens, right? So, पहले क्या थे, king थे, king को execute कर दिया, अब क्या बन गया, फ्रांस एक सोवरेन नेशन बन गया, ओके। द रिवोल्यूशन प्रोक्लेम्ड दैट इट वाज द पीपल हु वुड हेंसफोर्थ कॉन्स्टिट्यूट द नेशन एंड शेप इट्स डेस्टिनी। तो जब किंग को एग्जीक्यूट किया तो लोगों ने क्या मन में विचार रखे क्या कि भाई दिस किंग इज एब्सोल्यूट, वी कैन नॉट टॉलरेट दिस एनी मोर, राइट। तो अब हमको क्या चाहिए, वी वॉन्ट टू कॉन्स्टिट्यूट द नेशन, राइट, एंड शेप इट्स डेस्टिनी, की मतलब अब हम खुद हमारे देश का संविधान बनाएंगे और हम खुद डिसाइड करेंगे कि हमारे देश का फ्यूचर क्या होगा, ओके। The French revolutionaries introduced various measures and practices that could create a sense of collective identity amongst the French people. Now French Revolution में हमने देखी थी बहुत सारी चीजें वहाँ पर लोगों ने की, right? कलेक्टिव आइडेंटिटी लोगों के बीच में एस्टेब्लिश करने के लिए बहुत सारे क्लब्स भी बने थे, जैकोबियन क्लब का नाम भी आपको याद होगा, ओके। सो उन क्या क्या मेजर्स उन्होंने लिए थे, द आइडियाज ऑफ, सबसे पहले ला पात्री, दैट इज द फादरलैंड। उन्होंने क्या बताया कि ये हमारा देश है, हमारी माता, जैसे हम बोलते हैं ना भारत हमारी माता है, भारत माता की जय, राइट। तो उन्होंने क्या बोला कि फ्रांस क्या है, हमारा फादरलैंड है, एंड ले सिटॉइन, और हम क्या है, इसके सिटीजन्स है। तो इन आइडियाज पे इन्होंने एम्फेसाइज किया। सो दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट है ना, ऐसे आइडियाज एग्जाम में आ सकते हैं, सो यू हैव टू रिमेंबर दीज थिंग्स कि उन्होंने फ्रेंच रिवोल्यूशनरीज ने बहुत सारे ऐसे मेजर्स लिए थे। तो क्या थे वो मेजर्स, सबसे पहले था ला पात्री विच इज द फादरलैंड, एंड ले सिटॉइन दैट इज द सिटीजन्स। इस पे उन्होंने एम्फेसिस किया लोगों को एक साथ लाने के लिए। एज आई टोल्ड यू कि लोगों ने क्या किया था, लुई 16 और उसकी जो क्वीन थी मैरी एंटोनॉइटे, उनको एग्जीक्यूट कर दिया और एक कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने अपना लेकर आए, राइट। दे टॉक्ड अबाउट द राइट्स एंड एवरीथिंग। देन लेटर ऑन नेपोलियन आया, नेपोलियन वाज द मिलिट्री लीडर। सो नेपोलियन he became the dictator after Louis 16. Napoleon became the dictator. So what happened, what has he done? Napoleon introduced many things in France. So how do we say it? The civil code of 1804, usually known as the Napoleonic Code. Now what was it? This is also important from the, in terms of exam point of view से, the civil code of 1814, उसी को क्या बोलते हैं, the Napoleonic Code. Okay, what did it do? It did away with all privileges based on birth, established equality before the law and secured the right of property. अब नेपोलियन ने बहुत सारी चीजें फ्रांस के अंदर इंट्रोड्यूस करी, राइट टू प्रॉपर्टी उसने लोगों को दिया, क्योंकि पहले जो फ्यूडल लॉर्ड्स थे, जो एरिस्टोक्रेट्स थे, वो क्या करते थे, लोगों को एक्सप्लॉइट करते थे, राइट, क्योंकि ज्यादातर प्रॉपर्टी चर्च और नोबल्स के पास में ही थी, ओके। सो नेपोलियन ने क्या किया, इक्वालिटी बिफोर द लॉ एस्टेब्लिश करी, लोगों को राइट टू प्रॉपर्टी दिलवाया, और भी बहुत सारी चीजें नेपोलियन ने की थी। देन we will see what else he has done. So Napoleon first of all tried to bring equality, right, because he did away with all privileges based on the birth. मतलब he was saying कि राजा का बेटा राजा बनेगा, ये कौन सी बात हुई, तो ये प्रिविलेज हो गई बाय बर्थ की, कि आप अगर आपने बर्थ लिया है किंग की फैमिली में तो ये प्रिविलेज आपको नहीं मिलेगी, राइट। तो ये प्रिविलेजेस खत्म करो। जो नोबल्स थे उनके प्रिविलेजेस को उसने खत्म किया, और उसने कोशिश करी कि सब इक्वल हो जाएं इन द आइज ऑफ लॉ। सो ही ट्राइड टू ब्रिंग इक्वालिटी इन द फ्रांस, and he also secured right to property. As I told you, all these aristocrats, they had all the property earlier. तो उसने क्या किया, right to property को भी secure किया। He has removed guild restrictions also. Guild restrictions means जैसे trading के लिए merchants जाते हैं एक शहर से दूसरे शहर में, तो उनको टैक्स देना पड़ता था, तो उसने वो भी खत्म किया। बहुत सारे और measures उसने लिए थे, we will be seeing in the chapter afterwards, but still people hated him. Why? Because उसने लोगों को, he did not give them political freedom. He has snatched right to vote from the people, right? क्योंकि अब Napoleon was the dictator, right? तो voting का तो कोई सवाल ही नहीं है। So
That is why people did not like him. Okay, so this was about him. But you know, still in how this nationalism thing came, कैसे हुआ ये? Now, during 18th century, there was no idea of nation states, right? People were not aware about nation states things. Why? Because you know, different you know, parts, in the different parts, different kings were ruling. Okay, so see, like in Germany, Italy and Switzerland were divided into different kingdoms, duchies and cantons, whose rulers had their autonomous territories. Okay, now different rulers had their different independent areas where they were ruling independently. So in Eastern and Central Europe also, they were also under autocratic monarchies. Okay, so Eastern or Central Europe का भी जो हिस्से थे, they were under autocratic monarchs. Okay, those monarchs who are absolute monarchs. Okay, now you all know that these kings used to you know, exploit people, right? तभी तो French Revolution आया, because they were all autocratics, they were all absolute monarchs. So you must have heard that you know, this absolute monarchy, it is a very bad system. Okay, लेकिन अब ये यूरोप के बाकी हिस्सों में कैसे आएगा? So you know, अलग-अलग you know, different kings were ruling into different areas. Okay, so and in these territories lived different diverse people. Now the people who were living in these territories, different types of people were living. मतलब अलग अलग तरीके के लोग, मतलब people were, you know, their ethnicity was different, their language was different, their culture was different, the clothes which they wear, they used to be different. Okay, the food which they used to eat, that used to be different. Okay, so they did not see themselves as sharing a collective identity or a common culture. So there was nothing called common culture, there was nothing common in them. Often they even spoke different languages and belonged to different ethnic groups. As I told you, their language used to be different, their ethnicity used to be different. For example, book के अंदर एक example दिया हुआ है, the Habsburg Empire. So this is your Habsburg Empire. So इस Habsburg Empire में क्या था? different types के लोग रहते थे, right? Their food, their clothing, their language, their festivals, everything used to be different. Okay. So this Habsburg Empire that ruled over Austria and Hungary, for example, was a patchwork of many different regions and people. So all different types of people used to live in Habsburg Empire. So they did not have anything in common. It included the Alpine regions, the Tyrol, Austria and Sudetenland, as well as Bohemia, where the aristocracy was predominantly German speaking. अब यहाँ पर क्या हो रहा है, इन एरियाज में, टायरोल, ऑस्ट्रिया वगैरह में जर्मन स्पीकिंग लोग ज़्यादा हैं यहाँ पर. It also included the Italian speaking provinces of Lombardy and Venetia. Now there are Italian speaking people also, German speaking people also. So basically what am I trying to say, that during 18th century, 17th, 18th century, different types of people lived in these different kingdoms. Okay, and they did not have anything common in them. So nationalism कैसे आएगा? But one thing was common. What was that common thing? The only tie binding these diverse groups together was a common allegiance to the emperor. Allegiance means they were very faithful towards their emperor, right? So उनके लिए उनका जो king होता था, that only used to be the most important thing. Okay, so there was no fraternity among the people, they were only faithful towards their king. And now अब इतने सारे जो you know, different ethnicity, different types of people, तो इनमें एक nation state का concept कैसे आएगा? तो अभी तक तो you know, everybody is different in this thing. सिमिलरली यूनिफिकेशन, ये तो हमने देखा यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी. अब हम देखेंगे यूनिफिकेशन ऑफ इटली कैसे हुआ. सो इटली वाज आल्सो डिवाइडेड इनटू 7 स्टेट्स ड्यूरिंग द 1830s. ठीक है, गुजिप मजीनी formed a secret society called the Young Italy. We have seen this earlier. The failure of revolutionary uprisings both in 1831 and 1848 meant that the mantle now fell on Sardinia, Piedmont under its ruler
किंग विक्टर इमैनुअल सेकेंड टू यूनिफाई द इटालियन स्टेट्स थ्रू वॉर। अब हम क्या करेंगे, इटली जो था वो 7 स्टेट्स के अंदर डिवाइड था, तो गुजिप मजीनी ने एक सीक्रेट सोसाइटी बनाई थी यंग इटली, है ना। तो जो जितने भी रिवॉल्यूशनरीज थे उनको क्या कर रहे थे, सप्रेस किया जा रहा था, है ना। तो अब क्या होगा, अब एक नया रूलर था जो विक्टर इमैनुअल सेकेंड, तो उसने क्या सोचा कि इन सबको हम यूनिफाई करेंगे थ्रू दी वॉर। वॉर इज द सॉल्यूशन टू यूनिफाई Italy. Okay, so Chief Minister Cavour, who led the movement to unify the regions of Italy, was neither a revolutionary nor a democrat. So ये जो Chief Minister था उस टाइम पे इटली का, कैवोर, ये क्या था, he was not, इसके अंदर कोई राष्ट्र प्रेम किया, देशभक्ति की भावना नहीं थी, he was कोई रिवॉल्यूशनरी नहीं था, डेमोक्रेट भी नहीं था, बट ही वॉज अ गुड स्पीकर, है ना, एक ना डिप्लोमेटिक टाइप का आदमी था. So through a tactful diplomatic alliance with France, engineered by Cavour, Sardinia, Piedmont succeeded in defeating the Austrian forces in 1859. 1859 में उसने क्या किया, ऑस्ट्रिया के फोर्सेस को हरा दिया वॉर करके. Apart from regular troops, a large number of armed volunteers under the leadership of Giuseppe Garibaldi joined the fray. अब ये एक लोकल लीडर था, इसकी हेल्प से इसने क्या किया, इनके पास खुद की आर्मी तो थी लेकिन इन्होंने एक गुजिप ये करके, गारिबाल्दी एक लोकल डॉन था एक्चुअली, काइंड ऑफ माफिया, तो उसकी हेल्प से भी इन्होंने क्या किया, इस आर्मी को, ऑस्ट्रिया की आर्मी को हराया. In 1860 they marched into South Italy and the kingdom of Two Sicilies and succeeded in winning the support of the local peasants in order to drive out the Spanish rulers. स्पेनिश रूलर्स को भी फिर इन्होंने साउथ इटली से निकाल दिया लोकल पेजेंट्स की मदद से. In 1861 विक्टर इमैनुअल सेकेंड was proclaimed king of unified Italy, और फाइनली वो यूनिफाइड इटली का किंग कौन बन गया, इमैनुअल सेकेंड, विक्टर इमैनुअल सेकेंड. इन द ईयर 1861 he became the king of united Italy. अब इसके साथ में ये हमने देखा यूनिफिकेशन ऑफ इटली. अब ब्रिटेन में क्या हो रहा था, There was no British nation prior to the 18th century. 18th century के पहले कोई British nation नहीं था. The primary identities of the people who inhabited the British Isles were ethnic ones such as English, Welsh, Scot and Irish. ब्रिटेन के अंदर ये 4 ethnicity के लोग थे, ठीक है. All these ethnic groups had their own cultural and political traditions. इनके सबके cultural और political traditions अलग अलग थे. किनके, English के, Welsh के, स्कॉट लोगों के और आयरिश लोगों के. ओके, सो अब यू नो दैट दीज ब्रिटिश पीपल, दीज इंग्लिश पीपल, दे वर वेरी स्मार्ट, है ना. इंडिया में आके भी इन्होंने क्या किया, ट्रेड करने के लिए आए थे. लेटर ऑन इन्होंने पूरा इकोनॉमिक पॉलिटी सारी अपने हाथ में ले ली और लोगों को बहुत एक्सप्लॉइट किया, हमारे इकोनॉमी को बहुत एक्सप्लॉइट किया, पूरी तरीके से इंडिया को इन्होंने बर्बाद कर दिया. और साथ ही साथ इन्होंने क्या किया, लोगों को डिवाइड भी किया. यहाँ पर आकर इंडिया में भी इन्होंने क्या किया, फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई. पार्टीशन ऑफ बंगाल किस बेसिस पे किया, हिंदू और मुस्लिम के बेसिस पे, तो लोगों को लड़वाया इन्होंने. सेम चीज इन्होंने आयरलैंड में करी. सो द इंग्लिश पार्लियामेंट हैड सीज्ड पावर फ्रॉम द मोनार्की इन 1688. द एक्ट ऑफ यूनियन बिटवीन इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड हैड रिजल्टेड इन द फॉर्मेशन ऑफ यूके ऑफ ग्रेट ब्रिटेन. अब क्या किया इन्होंने, एक एक्ट ऑफ यूनियन निकाला, ठीक है. द एक्ट ऑफ यूनियन जो कि 1707 में इन्होंने पास किया. किस किस के बीच में साइन हुआ, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के लोगों में, ठीक है. meant in effect that England was able to impose its influence on Scotland. The British Parliament was henceforth dominated by its English members. अब इसका क्या मतलब है कि एक्ट ऑफ यूनियन के अंदर इन्होंने क्या किया, एक्ट ऑफ यूनियन के अंदर जो कि 1707 में साइन हुआ था, ये जो इंग्लैंड था इसने स्कॉटलैंड के लोगों को क्या बोला कि भाई तुम हमारे साथ आके एक अपन लोग मिलके साथ में क्या करते हैं, एक नेशन बना लेते हैं, ठीक रहेगा. तो स्कॉटलैंड के लोग बेचारे सीधे थे, उन्होंने कहा ओके ठीक है कर लेते हैं ऐसा. तो जैसे ही स्कॉटलैंड ने ये एक्ट ऑफ यूनियन साइन किया तो क्या हुआ, इंग्लिश लोगों ने इन पे पूरा अपना कंट्रोल स्थापित कर लिया. मतलब इनको इनकी लैंग्वेज नहीं बोलने दे रहे थे, इनको इनके ट्रेडिशन फॉलो नहीं करने दिए जा रहे थे. एक्ट ऑफ यूनियन साइन होने के बाद जब ये मर्ज हो गया तब, और जो ब्रिटिश पार्लियामेंट थी उसके अंदर भी मेजॉरिटी किसकी थी, सबसे ज्यादा कौन थे, इंग्लिश मेंबर्स ही थे. तो इन बेचारों की वहां भी नहीं चलती थी. The growth of a British identity meant that Scotland's distinctive culture and political institutions were systematically suppressed. Okay, तो इनका जो culture था और इनकी जो political institutions थे उनको इन्होंने क्या किया, suppress कर दिया. The Catholic clans that inhabited the Scottish Highlands suffered terrible repression whenever they attempted to assert their independence. अब जब भी
जो कैथोलिक लोग थे, क्रिश्चियन के अंदर दो होते हैं, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट, है ना। तो कैथोलिक जो लोग थे उन्होंने जब भी, स्कॉटिश कैथोलिक, उन्होंने जब भी कोशिश करी इनके खिलाफ रिवोल्ट करने की, इंग्लैंड के खिलाफ, तो उनको बहुत ब्रूटली क्या किया जाता था, सप्रेस किया जाता था। ओके, the Scottish Highlanders were forbidden to speak their Gaelic language or wear their national dress। तो अब जो स्कॉटलैंड के लोग थे, जब वो मर्ज हो गए इंग्लैंड के साथ में एक्ट ऑफ यूनियन साइन करने के बाद में, तो उनको उनकी लैंग्वेज बोलने नहीं दी जाती थी और उनको उनकी नेशनल ड्रेस पहनने से भी मना किया जाता था। Similarly, they have done with Ireland. Ireland suffered a similar fate. It was a country deeply divided between Catholics and Protestants. Now, in Christianity के अंदर दो, जैसे मुस्लिम्स के अंदर होते हैं शिया और सुन्नी, है ना, अहमदिया, बहुत सारे अलग अलग है। उसी तरीके से क्रिश्चियंस के अंदर क्या है, कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट्स। जैनियों के अंदर भी क्या होते हैं, दिगंबर अलग होते हैं, श्वेतांबर अलग होते हैं। तो अलग अलग रिलीजन्स का अलग अलग सिस्टम है। तो क्रिश्चियनिटी में भी दो है, कैथोलिक है और प्रोटेस्टेंट है, ठीक है। तो आयरलैंड के अंदर कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट्स जो थे वो एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। तो द इंग्लिश हेल्प्ड द प्रोटेस्टेंट्स ऑफ आयरलैंड टू एस्टेब्लिश देयर डोमिनेंस ओवर अ लार्जली कैथोलिक कंट्री। तो जो इंग्लिश थे वो स्मार्ट तो थे ही, फूट डालो और राज करो की नीति उनको आती थी। तो उन्होंने क्या किया कि प्रोटेस्टेंट्स जो थे उनको बोला कि अब हम क्या करेंगे, जो कैथोलिक कंट्री है ना उस पर तुम्हारा डोमिनेंस ला देंगे, तो यू बी विद अस। तो उन्होंने एक रिवोल्ट करवा दिया। तो कैथोलिक रिवोल्ट्स अगेंस्ट ब्रिटिश डोमिनेंस वर सप्रेस्ड, है ना। तो जो कैथोलिक लोग थे बेचारे वो भी रिवोल्ट करते हैं, क्यों, हमें क्यों सप्रेस कर रहे हो। तो जो कैथोलिक लोगों ने रिवोल्ट किया प्रोटेस्टेंट्स के खिलाफ, तो उसको ब्रिटिश लोगों ने आके क्या कर दिया, सप्रेस कर दिया। आफ्टर अ फेल्ड revolt led by Wolfe Tone and his United Irishmen in the year 1798, Ireland was forcibly incorporated into the United Kingdom in 1801। तो फाइनली इन्होंने आयरलैंड को भी 1801 में यूनाइटेड किंगडम के अंदर इंक्लूड कर लिया। तो अब ये क्या बन गया, यूनाइटेड किंगडम। इन सबको मिला के इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और ये आयरलैंड, ठीक है। सो दीज वर दी ब्रिटिश। So, a new British nation was forged through the propagation of a dominant English culture. The symbols of the new Britain, अब इन्होंने अपना खुद का फ्लैग लिया है, the British flag, Union Jack, the national anthem, God Save our Noble King, इन्होंने खुद का national anthem निकाल दिया। The English language was actively promoted and the older nations survived only as subordinate partners in this union। तो जिनको इन्होंने merge किया था अपने साथ वो बेचारे कहने के लिए ही थे, kind of subordinate partner ही बनकर रह गए, लेकिन dominance किसका था, इंग्लैंड का। इंग्लिश लैंग्वेज ही बोलो, राइट। तो ये खुद को ही प्रमोट कर रहे थे, एक तरह से खुद का डोमिनेंस रख रहे थे और बाकी सबको क्या कर रहे थे, सप्रेस कर रहे थे। आर्टिस्ट इन द 18th and 19th centuries found a way out by personifying a nation। अब ये क्या है, पर्सोनिफाइंग अ नेशन, नेशंस को पर्सोनिफाई किया, राइट, कि उससे क्या होगा, लोग कनेक्टेड फील करेंगे। जैसे हम क्या बोलते हैं, भारत माता, राइट, लोग क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। हम सब बोलते हैं ना भारत माता की जय। स्कूल्स में भी क्या होता है, फंक्शन होते हैं, तो एक किसी बच्चे को भारत माता बना देते हैं, है ना, उनको ट्राई कलर का साड़ी बना देते हैं, क्राउन रखते हैं, हाथ में फ्लैग देते हैं, राइट। तो वो क्या है, पर्सोनिफाइंग ऑफ नेशन, ठीक है। सो नेशन को उन्होंने क्या किया, दे पोर्ट्रेट नेशन एज अ फीमेल फिगर, ठीक है ना। दैट इज द फीमेल फिगर बिकेम एन एलेगोरी ऑफ द नेशन, ठीक है। फीमेल फिगर, उन्होंने नेशन को क्या किया, एक फीमेल फिगर की तरह दर्शाया और फाइनली फीमेल फिगर क्या बन गया, एक एलेगोरी ऑफ द नेशन बन गया। ड्यूरिंग द फ्रेंच रिवॉल्यूशन भी इन्होंने यही किया था। तो ड्यूरिंग द फ्रेंच रिवॉल्यूशन टू पोर्ट्रे आइडियाज सच एज लिबर्टी, जस्टिस एंड द रिपब्लिक, these ideals were represented through specific objects और symbols। हमने फ्रेंच रिवॉल्यूशन में देखा था, जैसे ब्रोकन चेन, है ना, बहुत सारे सिंबल्स थे फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम पे, वो रिप्रेजेंट करते थे, जिन्होंने नेशन बिल्डिंग में बहुत सारा सहयोग दिया था, है ना। तो अब ये क्या हो रहा था, पर्सोनिफिकेशन हो रहा था। द एट्रीब्यूट्स ऑफ लिबर्टी क्या थे फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पे, द रेड कैप, द ब्रोकन चेन, एटसेट्रा, राइट। तो अब ये क्या हुआ, पर्सोनिफिकेशन किया गया नेशन का, विजुअलाइजिंग द नेशन की, एक नेशन किस तरीके का होना चाहिए। तो इन्होंने फीमेल फिगर के थ्रू नेशन को क्या किया, डिपिक्ट किया। सी इन द पिक्चर यू कैन सी similar female allegories were invented by artists in the 19th century to represent the nation। 19th centuries में इन आर्टिस्ट ने क्या किया, इस तरीके के फीमेल एलिगोरीज बनाए। इन फ्रांस शी वॉज अ क्रिस्टाइंड मरीने, अ पॉपुलर क्रिश्चियन नेम विच अंडरलाइंड द आइडिया ऑफ पीपल्स नेशन। ये देखो इन दिस पिक्चर यू कैन सी,
Her characteristics were drawn from those of liberty and the republic, and the red cap, the tricolor and the cockade. Red cap तो पता ही है ना? Tricolor पता ही है, 3 colors. Cockade मतलब it was like a जैसे फॉर एग्जाम्पल इन्होंने यहाँ बालों में एक एक्सेसरी लगा रखी है ना, इसको बोलते हैं कॉकेड. ठीक है, तो इस तरह से नेशन को उन्होंने विजुअलाइज किया, एक आइडेंटिटी दे दी. सिमिलरली जर्मेनिया बिकेम द एलेगोरी ऑफ द जर्मन नेशन. जर्मन लोगों ने अपनी एलेगोरी किसको बनाया? जर्मेनिया को. हियर यू कैन सी इन द पिक्चर, ये क्या रखती है? हाथ में एक स्वॉर्ड रखती है, ओक लीव्स रखती है. इन विजुअल रिप्रेजेंटेशंस जर्मेनिया वियर्स अ क्राउन ऑफ ओक लीव्स. इसका जो क्राउन है वो किसका बना हुआ है? ओक लीव्स का बना हुआ है ना. तो ओक स्टैंड्स फॉर हीरोइज्म. ठीक है, सो इस तरीके से अलग अलग आर्टिस्ट ने अलग अलग नेशंस में अलग अलग एलेगोरीज बनाए जो कि उस पर्टिकुलर नेशन को डिपिक्ट करती थी. सो दिस वाज अबाउट जर्मेनिया. नाउ लेट अस क्विकली रीड the symbols which she is carrying, right? So she is carrying a broken chain, which means freedom, being freed. Okay, then the breastplate with eagle, which means the symbol of German Empire, which is the strength, which means the German Empire is very, very powerful, right? Strong. Then Germania is also wearing a crown of oak leaves, which represents heroism, which means she is very heroic, okay, very powerful. Then a sword, which means she is always ready to fight. Then olive branch around the sword. अच्छा, उसकी sword के साथ में कुछ olive branch भी थी. उसका मतलब है she is willing to make peace. If you want to make peace with her, she will be ready to make peace also, right? Then black, red and golden tricolor flag, which is the flag of the liberal nationalists. Okay, and then finally the rays of the rising sun, which represents the beginning of a new era. So these are the symbols which I think you should learn from the point of view of exam. This is something important. Okay, now see some artists, they have also shown Germania falling down on the floor, right? So different artists have represented their different visions. So why they have shown Germania falling down on the floor? Because the king of Prussia, he has suppressed the revolt, right? So उस time पे उन्होंने इस तरीके से दर्शाया कि Germania had now fallen down, right? So different artists, they have presented their views in using Germania. Okay. To watch the complete video, download the UpBind educational app from Play Store and App Store.